हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Peninsular India. There is a most important topic. Peninsular India is include the Deccan Plateaus and there are coastal plain of the South India. There is a most important. Here to show the map. The plateaus is situated to the south of the Vindhya Mountains. It is divided into three major regions and which are largely is corresponding to the northern state of Maharashtra and Andhra Pradesh and the Karnataka. The northern Deccan Plateau is comprised of the part of their Maharashtra. A number of the Catholic cities inhabited by the people using to the copper and stone tools has been found in this region. Karnataka include the southern west Deccan and this region with the availability of the water and other resources has been to the more suitable for a human settlement. Then the northern part, there is a rice source is the best for its rice of cultivation has been to known as the rice of wall of South India. It has been to there is born of contentions and between the different kingdoms. This regions were to they have it by the right from to the prehistoric time. There is the most important here prehistoric times. And the plateau regions also has a hilly terrains in the western and the eastern Ghat. There is a western Ghat rises sharply close to the western coastal and taperings is eastward into the plateau. They are cut by a series of the passes at Jannar, Kanharis and Kerelis, and this is a several and trade is a routes is a connected their ports along their best coast. At the southern end of the western Ghat is the Palaghat Pass, which is a linked to the best coastal to the Kaveri and valley is a play an important role in their Indo-Roman trade in the ascent period. And the eastern Ghat is merged to the more gradually into the plateaus and the coastal plain. The coastal plain is a constitute the state of Tamil Nadu in the state at Kerala on the west. In that Tamil Nadu is a river water seasonal. As a result, the people of the regions has to depending more on the tank erosion than the earlier time. However, is the Kaveri Delta has been to the major reasons of human attraction. It's a provided to opportunity for the cultivation of rice and witness to the flourishing of is a Sangam's culture in the earlier historical period. And the ports such as the Arik Commandus and the Kaveri Patulum gave the impetus of the Indo-Roman trade in the earlier century of Christian's era. The Christian's era, the Tamil version involved districts is a linguistics and cultural identity of it is a oven. यदि हम यहाँ पर बात करें प्रायद्वीपीय भारत की तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आता है प्रायद्वीपीय भारत के रिगार्डिंग, यानी पेनिसुलर ऑफ इंडिया। देखिए प्रायद्वीपीय भारत में दक्षिण का पठार और दक्षिण भारत के समुद्रीय मैदानी क्षेत्र शामिल है। ठीक है, इसको चित्र में भी आप मानचित्र में भी देख सकते हो। यह पठार जो विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के दक्षिण में स्थित है और इसे तीन मुख्य क्षेत्र में विभाजित किया गया है। अगर आपको पेनिसुलर की क्वेश्चन आ जाता है कि पेनिसुलर क्या होता है, प्रायद्वीपीय भारत से आप क्या समझते हैं, प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है, तो ये बहुत काफ़ी सुंदर आंसर है जिसको आप समझ सकते हो। ठीक है, तो आपको दिमाग में ये रखना है कि ये जो है दक्षिण का पठार और दक्षिण भारत के समुद्री तटीय मैदान क्षेत्र सम्मिलित होते हैं इसमें, और यह पठार जो है विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के दक्षिण में स्थित है और तीन मुख्य क्षेत्रों में विभाजित भी इसको किया जाता है, जिसमें अधिकतर जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के आधुनिक प्रदेश आते हैं। कहते तांबे और पत्थर के औजारों का जो उपयोग करने वाले लोगों का जो है ताम्र पाषाण युगीन स्थल ज़्यादातर यहीं पर पाए गए हैं, यानी ताम्र पाषाण युगीन के समय में जो हमें मिले हैं औजार उन इन्हीं क्षेत्र में मिले हैं। कर्नाटक में दक्षिण पश्चिमी दक्कन क्षेत्र भी सम्मिलित है और यह जल और अन्य संसाधनों की जो उपलब्धता के लिए अधिक सुविधाजनक रहा है। चावल की खेती के कारण जो है रायचूर दोआब क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल केंद्र कहा जाता है, यानी बॉस ऑफ राइस।
कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है कि बॉल्स ऑफ राइस किसे कहते हैं। तो याद रखना कि ये जो होता है यहाँ पर किसको कहते हैं, चावल की खेती के कारण जो है रायचूर दोआब क्षेत्र को जो है हम यहाँ दक्षिण भारत का चावल केंद्र भी कह सकते हैं। और यह क्षेत्र जो है विभिन्न बंदरगाहों में परस्पर युद्ध का कारण भी रहा है, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ क्षेत्र रहा है तो हर समय जो है युद्ध का सबसे बड़ा कारण भी इसी क्षेत्रों को ही माना जाता है। यह क्षेत्र विभिन्न बंदरगाहों में परस्पर युद्ध का कारण रहा। ऐतिहासिक काल से ही इन क्षेत्रों में लोगों का निवास रहा, यानी काफ़ी अच्छा यहाँ पर क्षेत्र होने के कारण, यहाँ पर उपजाऊ होने के कारण सभी लोगों का ये क्षेत्र है मनपसंद रहा है। पठार क्षेत्र में भी जो है पश्चिम और पूर्वी घाटों पर पहाड़ी भूप्रदेश है और यह पहाड़ियाँ पश्चिम तट पर जो है पश्चिमी घाट के नज़दीक से बिल्कुल ही सीधा ऊंचाई की तरफ बढ़ते हुए हैं। पूर्व दिशा में पठार की तरफ ढलान में चली जाती है और जजुनार, कन्हरी और कोरल पर इसमें अनेक मार्ग यंत्रारे श्रेणी स्थित होते हैं और यह मार्ग इस बंदरगाह को जो है पश्चिम समुद्र तट को जोड़ने वाले जो है व्यापारिक मार्ग के रूप में उपयोग कर रहे हैं। व्यापारिक मार्ग का तो मतलब समझ ही गए होंगे कि इन दरारों का उपयोग जो है आज व्यापारिक क्षेत्र के रूप में किया जाता है, यानी व्यापार करने वाले इसी मार्ग का जो है उपयोग करते हैं। कहते हैं पश्चिमी घाटों के दक्षिण किनारों पालघाट दरारों का है, यानी पश्चिमी घाट के जो है वो पालघाट दरारों के लिए जानी जाती है, जो कि पश्चिम समुद्र तट के जो है कावेरी घाटी से जोड़ती है और इसमें जो है प्राचीन काल से लेकर आज तक भारत, रोम, इंडो रोम व्यापार में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। पूर्वी घाट धीरे धीरे पठार और समुद्री तटीय मैदान क्षेत्र में ढलते चले जा रहे हैं। समुद्री तट मैदानी क्षेत्र में पूर्व में तमिलनाडु और पश्चिम में केरल प्रदेश आते हैं। तमिलनाडु में नदियां मौसमी होती है और जिसके परिणाम स्वरूप प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र के लोग तालाबों द्वारा सिंचाई पर अधिक निर्भर रहे हैं, यानी तालाबों द्वारा यहाँ सिंचाई जो होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है। फिर भी कावेरी डेल्टा क्षेत्र जो है मानव के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा है और इसमें चावल की खेती के लिए जो है अवसर प्रदान किए हैं और यहीं पर जो है जब ऐतिहासिक काल की संगम सभ्यता का विकास भी दिखाई दिया है, यानी देखा जाए तो ऐतिहासिक काल के संगम सभ्यता का भी विकास यहीं पे हुआ है और तमिल क्षेत्र में इन्होंने जो है अपनी एक विभिन्न भाषीय संस्कृति पहचान विकसित कर लिया है, तो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट जो हमारे समक्ष रहेगा वो है पर्यावरण का प्रभाव। देखिए पर्यावरण प्रभाव भी जो है हिमालय में किस प्रकार की रहती है, तो ये जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं।